This is a poem, A Prayer for My Daughter, composed by William Butler Yeats. He was an Irish poet, prose writer, and one of the foremost figures of 20th century English literature. He was awarded Nobel Prize in Literature in 1923. He composed this poem, A Prayer for My Daughter, in 1919 and published in 1921 as a part of Yeats' collection Michael Robarts and the Dancer. It was written to his daughter Annie 2 days after her birth on 26th of February 1919. He wrote this poem while staying in Thur Valley during the Anglo-Irish War. So this war had an impact on his poetry. This poem contains 10 stanzas. In this poem, he prays to God for the protection of his just born daughter and to make her a good lady who follows custom and ceremony. So dear students, let's come on and read this poem with Hindi translation. You will understand this poem easily here. So let's read this. Once more the storm is howling. एक बार पुनः तूफान गरज रहा है. And half hid under this cradle hood and coverlet. और आधी ढकी हुई पालने के अंदर और चादर में. My child sleeps on. मेरी बच्ची सो रही है. There is no obstacle. कोई नहीं है बाधा. But Gregory's wood and one bare hill, सिवाय ग्रेगरी वन और एक सूनी पहाड़ी के, where by the haystack and roof leveling wind, जिससे सूखी घास के ढेर और छत को धूमिल कर देने वाली हवा, bred on the Atlantic, जन्मी अटलांटिक में, can be stayed, रुक सके. And for an hour I have walked and prayed. और 1 घंटा मैं घूमा और प्रार्थना की. बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड, गहरी निराशा के कारण जो मेरे मन में है. सो ही इज इन टेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए जस्ट बोर्न चाइल्ड एंड ही सेज दैट देयर इज नो ऑब्स्टेकल टू स्टॉप दिस स्टॉर्म ऑफ वॉर. This is symbolic. Here this storm is for the war. And there is the war outside, the war of Anglo-Irish Civil War, and also in his mind, inner side, because he is in tension. He is in conflict how to save his daughter. So, except Gregory's wood and one bare hill, there is nothing to stop that storm of war, whereby the haystack and roof leveling wind, and this storm is destroying even the haystacks and roof bred on the Atlantic, and this wind was bred on the Atlantic Ocean, can be stayed, can be stopped. There is nothing to stop this storm. And so for an hour I have walked and prayed. I have walked and prayed for this young child an hour. मैं घूमा हूं और प्रार्थना की है इस छोटी बच्ची के लिए 1 घंटा. And heard the sea wind scream upon the tower. और सुनी है समुद्री हवा की चीख टावर पर. एंड अंडर द आर्केज ऑफ द ब्रिज, और पुल के चाप के नीचे. एंड स्क्रीम, और चीख इन द एल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, एल्म के पेड़ों में तेज बहती धारा के ऊपर. इमेजिनिंग एन एक्साइटेड रेवेरी, कल्पनाओं में उत्तेजक स्वप्न. दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, कि भावी वर्ष आ चुकी थी. डांसिंग टू अ फ्रेंजी ड्रम,
नाचते हुए उन्मत्त ड्रम पर, आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, समुद्र की प्राणघातक मासूमियत से निकलकर। आई हैव वॉक्ड एंड पेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर, मैं घूमा हूं और इस बच्ची के लिए 1 घंटे प्रार्थना की है। ही रिपीट्स दिस एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर, और टावर पर मैंने सुनी है समुद्री हवा की चीख। हाउ टेरिबल इट इज, एंड टावर हेयर his residence, and under the arcade of the bridge, and there is a bridge under that bridge, he has heard the scream there and in the elms above the flooded stream. जो तेज बहती धारा है पानी की, नदी की, उसके पास एल्म्स के पेड़ों में चीख सुनी है इस तूफान की। इमेजिनिंग एन एक्साइटेड रिवेरी, कल्पनाओं में उत्तेजक स्वप्न की कल्पना करते हुए, दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, की भावी वर्ष आ चुकी। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, समुद्र की प्राणघातक मासूमियत से निकलकर। समुद्र बहुत ही इनोसेंट होता है क्योंकि यह स्वयं किसी को नहीं मारता, लेकिन मर्डरस भी होता है क्योंकि कोई आ जाए तो वह मर जाता है। तो ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है जिसमें कंट्रास्टिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे बिटर स्वीट, इन द सेम वे इट इज मर्डरस इनोसेंस, ऑक्सीमोरोन। सो इन दिस वे ही प्रेज टू गॉड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज डॉटर, taking in mind the storm of war that is very extreme, that is very terrible. May she be granted beauty and yet not beauty to make strangers eye distraught. उसे मिले सुंदरता और इतनी नहीं, सुंदरता अनजान नजरों को भटका दे। और हर्ष बिफोर अ लुकिंग ग्लास, या उसकी ही को आईने के सामने। फॉर सच, क्योंकि ऐसे, बीइंग मेड ब्यूटिफुल ओवर मच, बनकर सुंदर बहुत ज्यादा, कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, मानेगी सुंदरता को ही पर्याप्त अंत। लॉस नेचुरल काइंडनेस, खो देगी स्वाभाविक दयालुता, एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, और हो सके दिल खोलने वाली प्रगाढ़ता को भी, दैट चूजेज राइट, जो कि सही चुनती है, एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, और कभी दोस्त न पा सकेगी। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, उसे ब्यूटी तो मिले लेकिन ऐसी नहीं कि किसी अनजान व्यक्ति की नजरों को भटका दे, अर्थात एक्सट्रीम ब्यूटी उसे नहीं मिले। और हर्ष बिफोर ए लुकिंग ग्लास, ये बिकॉज ऑफ ब्यूटी शी बिगिंस टू फील प्राउड ऑफ इट। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटिफुल ओवर मच, क्योंकि इस तरह अत्यधिक ब्यूटिफुल बनकर, कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड, वे ब्यूटी को ही अपना एकमात्र उद्देश्य मान लेगी। लॉस नेचुरल काइंडनेस, और इस तरह से जो नेचुरल काइंडनेस है, गुड क्वालिटीज हैं, गुड मेरिट्स हैं, सद्गुण हैं, उनको वह खो देगी। एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेज राइट, और फ्रेंड्स के बीच जो रिश्तों की प्रगाढ़ता है उसको भी खो देगी, जिससे वह कभी भी फ्रेंड भी नहीं ढूंढ पाएगी अपने लिए। एंड नेक्स्ट ही गिव्स एग्जांपल्स ऑफ टू मच ब्यूटी, व्हाट हैपेंड विद too much beautiful ladies in history. Helen being chosen found life flat and dull. हेलन चुनी गई, सुंदर, पाया जीवन नीरस और उदास, and later had much trouble from a fool. और फिर बहुत परेशानी हुई एक मूर्ख से। While that great queen that rose out of the spray, जबकि वह महान रानी जो कि झाग से निकली थी, being fatherless,
पिताहीन होने से could have her way, अपनी राह चुनी, yet chose a bandy-legged smith for man, किंतु चुना एक अपाहिज लोहार पति के रूप में। It's certain that, यह निश्चित है कि fine women eat a crazy salad with their meat, कि सुंदर महिलाएं खाती हैं सन की सलाद अपने खाने के साथ। Whereby the horn of plenty is undone, जिससे समृद्धि नहीं रह पाती। So in this stanza, the poet gives two examples of two much beautiful ladies. First is of Helen and second is here of Aphrodite, great queen Venus. So in the first reference, he says Helen being chosen found life flattened and dull. Helen was the wife of Menelaus in Greece, a great general. She was the most beautiful lady in the world, and she used to boast on her beauty, and so resultingly a prince of Troy eloped. And what happened? There was fought 10 years of war of Troy. Troy was ruined, destroyed, burnt to ashes. And so the poet does not want his daughter to be too much beautiful. While that great queen, दूसरा reference है great queen. Who is this? The Greek goddess of youth and beauty, Venus or Aphrodite, who rose out of the sea. While that great queen that rose out of the spray, जो समुद्र की जहाग से निकली थी, समुद्र से निकली थी, being fatherless, she had no father, could have her way. इसलिए उसने अपने जीवन का तरीका अपनाया। Resultingly क्या हुआ? Yet chose a bandy-legged smith for man. उसने अपने मैन के रूप में, अपने हस्बैंड के रूप में हेफेस्टस नाम के एक गॉड से मैरिज की जो कि हैंडीकैप्ड था। सो द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट सच एज ब्यूटीफुल लेडीज लाइफ बिकेम मिजरेबल, एंड सो पोएट सेज इट्स सर्टेन दैट फाइन वीमेन ईट अ क्रेजी सैलेड। यह निश्चित है कि इस तरह की सुंदर महिलाएं कोई ऐसा भोजन लेती हैं पागलपन वाला, विद मीट वे द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन, जहां की जो समृद्धि है, हॉर्न ऑफ प्लेंटी है, वह नष्ट हो जाता है, समृद्धि रह नहीं पाती। इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्न इट, शिष्टता उसे मैं ज्यादा सिखाऊंगा। हार्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न इट, दिल नहीं मिलते उपहार के रूप में बल्कि दिलों को जीता जाता है। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, उनके द्वारा जो कि पूरी तरह से नहीं है सुंदर। येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, फिर भी कई जो कि मूर्ख बने हैं। फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ, सुंदरता के लिए ही। हैज चार्म मेड वाइज, आकर्षण ने बना दिया बुद्धिमान। And many a poor man that has roved, और कई अभागे लोग जो कि भटके हैं। Loved and thought himself beloved, प्रेम किया और माना स्वयं को प्रेमी। From a glad kindness cannot take his eyes, सुखद दयालुता से नजर नहीं हटा सके। In courtesy I would have a chiefly learned, मैं उसे courtesy मुख्यतः विशेष रूप से सिखाऊंगा। Hearts are not had as gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. जो पूरी तरह से सुंदर नहीं है, ज्यादा सुंदर नहीं है, उनको hearts को जीतना पड़ता है। Yet many that have played the fool for beauty's very self. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि ब्यूटी के लिए मूर्ख बन गए। Has charm made wise. इस ब्यूटी ने ही उन्हें बुद्धिमान बना दिया, क्योंकि जब उन्हें प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उनमें बुद्धि आने लगी।
अपना रेफरेंस देता है मॉडगॉन का कि वह किस तरह से मॉडगॉन की ब्यूटी के पीछे भागा था, लेकिन वह बाद में समझ गया कि यहां प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वह बुद्धिमान हो गया। एंड मैनी अ पुअर मैन दैट हैज रोप्ड, और कई अभागे लोग जो कि भटके हैं जैसा कि वह स्वयं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, प्रेम किया और ऐसा माना कि उन्हें भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। फ्रॉम ए ग्लेड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आईज, सुखद दयालुता से नजर नहीं हटा सके। अर्थात ब्यूटी के पीछे भागने वाले लोग बाद में बुद्धिमान बन गए, और जब उन्हें सद्गुणी वाइफ मिली तो फिर वे उससे नजर नहीं हटा सके। इसलिए मैं अपनी डॉटर को कर्टसी सिखाऊंगा। नेक्स्ट, मे शी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री, वह बन जाए एक लहलहाता छिपा हुआ पेड़। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी, जिससे उसके सारे विचार हो लिनेट जैसे। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड, और कोई काम नहीं केवल निकालती रहे द मैग्नेनिमिटीज ऑफ साउंड, उनकी मधुर आवाज को। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चीज, मजाक में किसी का पीछा शुरू ना करे। नॉर बट इन मैरीमेंट ए क्वारल, मजाक में झगड़ा भी ना करे। और मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, अरे वह जिए कोई हरे लॉरेल जैसे। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, जड़ सी एक ही प्रिय स्थान पर निरंतर। सो द पोएट सेज मे शी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री, वह एक खुशहाल छिपा हुआ पेड़ बने। दैट इज शी मे लिव हैप्पी बट हिडन। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी, जिससे कि उसके विचार एक लिनेट बर्ड जैसे हों, जो कि छिपा रहता है और गाता रहता है। सो द पोएट सेज एंड हैव नो बिजनेस फॉर डिस्पेंसिंग राउंड, वह लिनेट उसके पास कोई काम नहीं, केवल अपनी मधुर ध्वनि निकालता रहता है। दे आर मैग्नेनिमिटीज ऑफ साउंड। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चीज, वह मजाक में भी किसी का पीछा शुरू न करे। नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्वारल, नहीं मजाक में झगड़ा भी करे। और मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, वह हरे एक लॉरेल पे पौधे की तरह रहे। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, जो कि एक ही स्थान पर जो कि उसका प्रिय है उस पर निरंतर बना रहता है, कहीं मूवमेंट नहीं करता। इसी तरह वह वन पर्सन के प्रति ही लाइफ लॉन्ग फेथफुल रहे, ऐसा पोइट अपनी डॉटर के लिए चाहता है। माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, मेरा मन क्योंकि जिन दिलों को मैंने चाहा है। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, जैसी सुंदरता मैंने की है मंजूर। प्रॉस्पर वट लिटिल, समृद्ध होती नहीं। हैज ड्राइड अप ऑफ लेट, सूख जाती है बाद में। यट नोज दैट टू बी चॉक्ड विद हेट, किंतु जानती है कि घृणा से भरकर होना। मे वेल बी ऑफ ऑल इवल चांसेस चीफ, होता है सारी बुराइयों का संयोग मुख्य। इफ देर इज नो हैट्रेड इन अ माइंड, यदि कोई घृणा ना हो मन में। असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, हवा का प्रहार और तूफान भी। कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, कभी नहीं कर सकते अलग लिनेट को पत्ती से। So the poet says, my mind, because the mind that I have loved, क्योंकि जिन दिलों को मैंने चाहा है, जैसी ब्यूटी को मैंने एक्सेप्ट किया है, वह प्रॉस्पर नहीं होती है, बाद में समाप्त हो जाती है। Yet knows that to be choked with hate may well of all evil chances achieve, यदि घृणा से भरकर है कोई व्यक्ति तो यह सभी बुराइयों में मुख्य होता है। यदि हैट्रेड ना हो, हार्ट्स में लव हो, तो रिश्तों को दूर नहीं किया जा सकता।
An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. बौद्धिक घृणा होती है बुरी सबसे, इसलिए वह सोचे रायें होती हैं अभिशप्त. Have I not seen the loveliest woman born? क्या मैंने देखा नहीं है सबसे सुंदर महिला को जो जन्मी. Out of the mouth of plenty's horn, समृद्धि के मुंह से. Because of a opinionated mind, उसके दुराग्रही मन के कारण. But that whore in every good, छिन गई समृद्धि और सारी अच्छी चीजें. By quiet nature understood, जो शांत मिजाज से जा सकती थी समझी. For an old bellows full of angry wind, गद्य व्यक्ति के लिए जो गुस्से से भरा हुआ था. पोएट कहता है, The poet says that intellectual hatred is the worst. जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक घृणा है, मानसिक घृणा है, सबसे बुरी होती है, क्योंकि इसके द्वारा लोग ओपिनियंस बना लेते हैं, प्रेजुडिसेस बना लेते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस बना लेते हैं, पूर्व धारणाएं बना लेते हैं, और उससे फिर evaluation of a person becomes wrong. And he said, have I not seen the loveliest woman born? क्या मैंने नहीं देखा है सबसे सुंदर महिला को. मॉडगॉन. लेकिन उसके ओपिनियनेटेड माइंड की वजह से, उसके प्रेजुडिस्ड माइंड की वजह से उसने सब कुछ बर्बाद कर लिया. जो सारी चीजें शांत मिजाज से समझी जा सकती हैं, उनको उसने नहीं समझा. और इस तरह से एक मैक ब्राइड नाम के उससे एज में अधिक व्यक्ति से उसने मैरिज की, जो कि एंग्री टेम्परामेंट का था. सो द पोएट सेज दैट इंटेलेक्चुअल हेट्रेड मस्ट नॉट बी इन माई डॉटर, कंसीडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन हैंस. यह विचार करके सारी घृणा निकल जाती है इस तरह. द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, आत्मा प्राप्त करती है तेज मासूमियत. एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अपराइटिंग. और सीखती है अंत में कि यह है आत्म आनंद, आत्म संतुष्टि और आत्म भय युक्त. एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवंस विल, और इसका स्वयं मधुर भाव है ईश्वर का भाव. She can, though every face should scowl, वह हो सकेगी चाहे सारे चेहरे हों क्रोधित. एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल, और चीखें सारी हवाएं. और एवरी बेलोज बस्ट, यह सारे बेलो फूट पड़े. बी हैप्पी स्टिल, फिर भी शांत. वह हो सकेगी फिर भी शांत. तो इस तरह से यदि सारी घृणा निकल जाए हार्ट से, तो सोल में एक इनोसेंस आ जाती है. और यही इनोसेंस आनंद देने वाली, डिलाइटिंग, अपीजिंग, सेटिस्फैक्शन देने वाली, और थोड़ा भय रिश्तों के टूटने का प्रोवाइड करती है. और यही ईश्वर की इच्छा होती है. और यदि इस तरह का भाव है, हैट्रेड निकल गई, लव है, तो फिर किसी भी तरह के तूफानों को वह झेल सकती है. एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, उसका दूल्हा उसे ले जाए ऐसे घर में, वेयर ऑल इज अकस्टम्ड सेरेमोनियस, जहां सब हो परंपरागत संस्कार पूर्ण. फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स, क्योंकि दम्भ और घृणा गुण है. पेडल्ड इन द थोरोफेयर्स, चलने के आम रास्तों में. हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी, कैसे किंतु परंपरा में और संस्कार में. आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न, मासूमियत और सुंदरता जन्म लेती है. सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न, संस्कार नाम है समृद्धि का. एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री, और परंपरा फैलते लॉरेल वृक्ष का. सो द पोएट विशेज
that she may be separate from all ills of life and have a purity of mind. And in this way, she may get her husband, whose family should be habituated with customs and ceremonies. There should be no place of arrogance and hatred, because these are for ordinary people. Ordinary people जो ना समझ लोग हैं, उनके लिए ये गुण है, मेरी डॉटर के लिए नहीं है। मेरी डॉटर के लिए तो ऐसा ब्राइड ग्रूम मिले जिसकी फैमिली ट्रेडिशनल हो, संस्कार पूर्ण हो, सद्गुणी हो। हाउ बट इन कस्टम एंड सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न। और इन्हीं कस्टम और सेरेमनी में, परंपरा और संस्कार में ही हृदय की निष्कपटता, इनोसेंस एंड ब्यूटी, सुंदरता जन्म लेती है। सेरेमनी इज ए नेम फॉर द रिच हॉर्न। तो ये संस्कार ही समृद्धि का नाम है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री। और परंपरा फैलते लॉरेल वृक्ष का, जैसे लॉरेल का पेड़ फैलता रहता है, ऐसे ही परंपरा और संस्कार फैलते रहें, उसके लिए ऐसा वह विश करता है कि तो इस तरह से मैं यही चाहता हूं कि मेरी डॉटर कस्टम और सेरेमनी को माने और साथ में उसे ऐसा ही परिवार मिले। So dear students, this is a very interesting poem, a prayer for my daughter. You have studied this here with me. Thank you.